of the body, not only of the health, but our karma, what in the human life, we are going to go from here. This body, which we nourish with the food, ultimately it is going to be cremated or burnt or buried. So this body needs something work. So our journey continues on an evolution. So from the karmic point of view, what you sow, that you reap. If I plant seed and if it is rice, then rice will grow. If I plant mango, mango will grow. If I plant apple and I pray to God, okay, oh God, please turn it into mango, it will not, because the law of nature. So if we take the food of the baby cow, and a baby cow go to wheel industry or suffering or create a separation of the mother and cow. So there are, philosophical point of view, there are three karmas. The first karma is we take the milk which has come for the baby cow and we take away, so it is called adattadan. We have taken the milk without the permission of the baby cow or the mother cow. So it is called adattadan. You have stolen, you have taken away. Second thing, when we need milk, the baby cow, where can they go? So in whole of New York or anywhere you move, you will not see a single bull. So many bull are born every day, burned. But their birth, they are burned, but they are not available here anymore. What shows that they are all taken to a wheel industry, they are put. So that their longevity of the baby cow, and they stay for 10 weeks in the wheel industry, they're suffering, they are there. So that suffering we have called, that suffering comes back like a boomerang. And ultimately we don't know. The parents will forgive, others will forgive, but the law of karma cannot. The mother cow suffers, she cries, and one day we have caused the separation. So sooner or later the separation will come to mother and a child, because you have taken for so many baby cows, so many cows, the thing. So sooner that will come, because the nature cannot forgive you or cannot make any favor for somebody who goes to temple. So that karma comes. So I saw. The third thing is, they are, cows live for 25 years. But with this process of milking, with the machine exploitation, within 6 years, they are completely drained. They become useless. So we become the cause to send all the slaughterhouse, the young cows, because of the exploitation, they all go to slaughterhouse. So the people who are talking about meat, they say we serve ahimsa, but they are creating hinsa to all the cows who, and we take away their longevity. So our longevity, I go to meet accident, illness, hospital, disease, names are different, but the result is the only one. What you sow, that you grow. So these three, adattadan and ayushya, and at the same time creating separation view.
So, from dharmic point of view, from a religious point of view, also it is better to live with a soya, with a coconut milk, or with a other type of milk there. But we have to conquer our habit, and being slave to the habit is not going to help in this life and the life to come. मूक जीव हैं, बोलते नहीं मुख से, इनकी कोई फरमाइश नहीं होती है, पर फिर भी हम इनको जैसा रखते हैं, इनको हमें प्यास लगती है तो हम पानी बार बार फ्रिज से निकाल कर पी लेते हैं, है ना। मगर ये जानवर जो हैं, जिन्हें हम टाइम से देते हैं पीने के लिए, सुबह दे दिया, शाम को दे दिया, बाकी दोपहर को उनको प्यास लगे तो किससे मांगेंगे। पर फिर भी हम उन जीवों पर कितना अत्याचार करते हैं। कहाँ है वो फोटो, है ना, कि हम कितना अत्याचार करते हैं कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि एक एक जानवर के ऊपर हमारा कितना अत्याचार होता है ना। ये देखो, ये इसको क्या कहोगे, इसको दया कहोगे कि अत्याचार कहोगे, है ना। ये देखें, एक एक ट्रक में जहाँ पर मात्र 8-10 जीव ही बन सकते हैं, पर वहाँ कत्ल खाने के लिए हम एक साथ एक ट्रक में भर भर करके ऐसे जीवों को ले जाते हैं, है ना। और अपन देखें, ये जीव दया नहीं है, ये क्या है, अत्याचार है ना। किस प्रकार से हम जीवों के साथ अत्याचार कर रहे हैं ना, जबकि सभी धर्मों में कहा गया है कि जीव दया, हर जीव पर हम दया करें। ये देखो किस प्रकार से हमने जानवरों की दुर्दशा कर रखी है ना। जो हमें गोबर भी देते हैं, हमें गोबर का धन भी देते हैं, दूध भी देते हैं, घी भी देते हैं, है ना। और जानवर होकर के भी ये हम पर इतना उपकार करते हैं, पर हम इनके उपकार का बदला इनको इस तरह से यातनाएं दे करके, है ना, इनके साथ अत्याचार करके, कि जिस दिन ये दूध देना बंद कर देते हैं, हम इनके साथ ऐसा अत्याचार करना प्रारंभ करते हैं। इन्हें चंद थोड़ा सा लोभ में, थोड़ा छोटे छोटे लोभ में, है ना, आकर के हम इन्हें कसाईयों के हाथ में बेच देते हैं, है ना, 2000-5000 रुपए के लिए, और उनकी ये दुर्दशा होती है ना। इसके लिए सब लोग जिम्मेदार। अगर हम ऐसे जानवरों के, जहाँ पर अपन देखें जिनकी क्षमता 2 लीटर दूध देने की है, और हम उन जीवों को, है ना, ज़्यादा दूध लेने के चक्कर में उन्हें इंजेक्शन लगा देते हैं, है ना, जिससे उनका खून पानी बन कर के वह दूध के साथ आ जाता है। और अपन देखें, 1 गिलास दूध में, है ना, कम से कम 2 बूंद खून की और 8 बूंदें पस दूध के साथ में गाय का आता है, जो व्यक्ति पीता है ना। तो ये अत्याचार, अब हम किसी के साथ ऐसा काम करेंगे तो हमारे साथ कैसा होगा, हमारे साथ भी टिट फॉर टेट ना, जैसा आप कर रहे हो वैसा हमको भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ध्यान रखें, हम इस अत्याचार से बचें। और जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो दूध से बनते हैं, या दूध है ना, घी है, इनसे हम अगर बचने का प्रयास करें तो उतना अच्छा है। हम धर्म के और निकट पहुंचेंगे, हम अपनी आत्मा के निकट पहुंचेंगे अगर हम इन चीज़ों से बचते हैं। क्योंकि कई ऐसा एक ग्रुप है जो इसका पालन करता है, और लाखों लोगों ने, है ना, अपन देखें दूध, घी, है ना, तुम्हारा पनीर आदि आदि चीज़ें छोड़ रखी हैं। और इसलिए छोड़ा है कि बहिष्कार किया है कि इनके खाने से, जब हम खाते हैं तो इसकी उत्पादन बढ़ेगा, तो लोग भैंसों को मारेंगे, गायों को मारेंगे। तो उन्होंने कहा इसका बहिष्कार करो खाने पीने का, जिससे कि हम उन मूक पशुओं को, मूक जीवों को बचा सकें। अब जब हम सबको पता है कि दूध के लिए कितनी क्रूअल्टी होती है और जानवरों को कितना मारा जाता है,
तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या जैन कम्युनिटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ के दूध का त्याग कर पाएंगे? अभिनव श्रीहन जी ने, जो कि अपन देखें, मुहिम चला रखी है पक्षियों को, कोई घायल पक्षी हैं तो उनका इलाज करना, कहीं पर ट्रक आदि में कोई ऐसे जानवर जा रहे हैं और चोरी छुपे उनको बचाना, उनकी रक्षा करना, है ना। तो देखें, उनकी एक प्रश्न है कि महाराज श्री, कि हम लोग इसका प्रचार करते हैं कि हमारे दूध पीने से, हमारे क्रीम खाने से, हमारे बटर खाने से, है ना, मावा खाने से, मिठाइयाँ खाने से उन जानवरों पर जो एक अत्याचार होता है, उन पर एक जुल्म होता है, वो मूक पशु किसी कह भी नहीं पाते अपने दर्द को, तो क्या हम उनके दर्द में सहयोगी बन करके, उनके दर्द की पुकार को समझ करके क्या हम दूध आदि का त्याग कर सकते हैं, या जैन समाज त्याग कर सकती है? तो अभिनव भाई, जो समाज होती हैं, ये जो भी प्रोडक्ट बाजार में मिलता है, ये उसको वहाँ से खरीद लाते हैं, तो इसलिए इनको अंदर की नॉलेज नहीं है, जानकारियाँ नहीं है ना। अगर जब हम, ये बहुत दयालु हैं, करुणामयी हैं, है ना, इनके अंदर करुणा भरी हुई है, मगर इन्हें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। जब हम बड़े बड़े कोई प्रोग्राम होते हैं अलग अलग संतों के, अभी जैसे चातुर्मास आ रहा है, और उस चातुर्मास में, है ना, अलग अलग दिल्ली में भी लगभग 25-30 चातुर्मास होंगे, और वहाँ पर हमें हजारों की तादाद में समाज एकत्रित होकर मिलेगी। तो हम जितने भी फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास कत्ल खाने के, या आप रास्ते के पकड़े हुए जानवरों के, या कत्ल खाने में कैसे जुल्म होते हैं, वीडियो हो, है ना, तो हम वहाँ पर एक स्थान लेकर के, वहाँ पर LED लगा करके उसमें बड़े रूप में वीडियो दिखाएं, है ना, फोटोग्राफ्स जो हैं उनकी प्रदर्शनी लगाएं, और वहाँ सबको मोटिवेट करें, है ना, कि भाई ये क्या है। तो देखो भाई, आप दूध पीते हो, देखो जानवरों की क्या स्थिति होती है, कैसे दूध निकाला जाता है, कैसे पर्स बनते हैं, कैसे चमड़े की वो चप्पल बनती है, कैसे आपकी क्रीम पाउडर बनते हैं, कैसे आपकी लिपस्टिक बनती है, कैसे नेल पेंट बनती है। अगर हम जब उनको ये चीज़ें बताते हैं और दिखाते हैं, तो ये देख कर के मुझे पूरा विश्वास है कि आप हजारों लोगों को दिखाएंगे तो हजारों लोगों में 1-2% लोग ऐसे मिलेंगे जो कठोर दिल के हों, पर बाकी जो बिल्कुल सहज भाव के लोग हैं, वो आपके उस वीडियो को और आगे फोटोग्राफ्स को देख करके नियम से त्याग करेंगे, है ना। बस हमें थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो घर से बाहर निकलते नहीं, ये चीज़ उनको देखने मिलती नहीं, तो उन्हें बिलीव नहीं होता है ना। अगर हम किसी से कहें दूध छोड़ दो, तो वो कहता है दूध छोड़ दो, उसमें क्या परेशानी है, अरे ये तो बड़े आसानी से आता है, मदर डेयरी पे हम लेकर आ गए, उसमें क्या है, वो तो पाउडर का है। पर उन्हें नहीं मालूम कि पाउडर कैसे बना, है ना, पाउडर भी तो दूध से ही बना, है ना। तो उनके दूध के लिए क्या किया गया, तो उनको वो पूरी जो लिंक जुड़ी हुई है, चेन है, वो उन्हें नहीं मालूम, है ना। वो तो मालूम सीधा सीधा कुछ हमें मालूम ही नहीं। तो जब उनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, चित्र दिखाएंगे, है ना, वीडियो दिखाएंगे, तो उनके अंदर अपने आप उनकी आत्मा उनको धिक्कार देगी, नहीं आपको ये काम नहीं करना है ना। जैसे मेरी आत्मा धिक्कार रही है कि मैं भी कभी भी दूध पी लेता हूँ, पर मैं बिल्कुल पक्का जी कर रहा हूँ और बस कुछ ही दिनों में दूध का त्याग कर दूंगा, है ना। तो इसे ध्यान रखें, और श्रीहन जी के लिए मेरा आशीर्वाद है कि आप अपने मिशन में आगे बढ़ते रहें, आपकी पूरी टीम इस काम में लगी रहे, मैं भी तुम्हारी टीम में तुम्हारे साथ हूँ। जय जिनेंद्र, मैं गौरव जैन। आज हम मुंबई से हमारे शाह जी आए हुए हैं, प्रदीप शाह जी, वो
महाराज जी श्रुत सागर महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। लाल मंदिर में आचार्य श्रुत सागर महाराज जी विद्यमान हैं और यहाँ पे प्रदीप जी ने महाराज श्री से कुछ वीगनिज्म को लेकर, दूध उत्पादों को लेकर कुछ सवाल पूछे हैं। तो हम महाराज श्री से नमोस्तु करते हुए महाराज श्री के विचार आप सबके लिए जानना चाहते हैं। ओम नमः। ये महानुभाव कि हम लोग सब जीव जंतु भोजन जो है स्वास्थ्य के लिए लेते हैं। जीने के लिए खाना होता है, खाने के लिए जीना नहीं। तो ये आजकल जो इस विश्व में भोजन से संबंधित कई विकृतियां आई हुई हैं, उसमें उनसे जानवरों से प्राप्त नाना प्रकार के निरामिष मांसाहार भोजन और इसके अलावा जितने भी खाने पीने के चीज़ें हैं, इनसे ऊपर उठ करके भोजन को हम दवाई की तरह ले। भोजन ऐसे शुद्ध हो, सात्विक हो, जो पेड़ पौधों से, शाक से आहार जो उत्पन्न होता है उसमें स्वयं जीने का, औरों को जीने दो, ये भाव रहता है। एनवायरनमेंट, ये जितने भी ग्लोबल वार्मिंग है, इसका मुख्य कारण जो है जो जानवरों से प्राप्त भोजन से होता है। और उसमें ख़ास तौर से जो शाकाहारी लोग हैं उन लोगों के लिए भी, जैसे मधुमक्खियों से प्राप्त शहद हो गया, और ये जो चीज़ें बाहर से हम प्राप्त करते हैं उनसे नाना प्रकार के विकृतियाँ आती हैं और नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कि वीगन के बारे में मेरे से ये लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें वीगन जो है वो एनिमल प्रोडक्ट जितने भी हैं उसमें ख़ास तौर से दूध, दही और उसके बाद मक्खन, उसके बाद अपने घी, ये सारे चीज़ें चर्चा में आई हैं। हमारे यहाँ जो जैन समाज में हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें हमारे आचार्यों ने इन सारे चीज़ों के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया है। रस परित्याग, रसों का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सबसे पहले रस आता है नमक। रसों का राजा है नमक। नमक का त्याग डॉक्टर तब कराता है जब हमको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, और डॉक्टर बोलता है नमक मत खाना, नमक लिमिट में लेना होता है। और ऐसे ही अब दूध है, दूध जो है वो हर एक को सूट नहीं करता है। जो मेहनत करते हैं और वो मेहनत करने वालों को थोड़ा बहुत डाइजेशन सही रहता है तो डाइजेस्ट हो जाता है। अधिकतर 90% लोगों को जो दूध पी लेते हैं तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जॉइंट पेन है, गैस है, और खाने के बाद, दूध पीने के बाद एकदम दस्त हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, इंटेस्टाइन भी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, बाकी चीज़ों को भी रख नहीं पाता है, दूध के साथ में सारे बाहर कर देता है। महानुभाव, ऐसे में दूध जो है एक रस, और उसका त्याग करने का हमारे भगवान महावीर स्वामी या उनके आचार्य परंपरा में रस परित्याग में दूध का भी त्याग बताया। और वो एक दिन के लिए छोड़ते हैं, हफ्ते में 2 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, 3 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं, जैसे सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप हफ्ते भर का करेंगे तो उससे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दूध कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से ला रहे हैं। अधिकतर दूध तो केमिकल से बन रहा है, उससे तो बीमारी है ही, जहर है ही वो। और जैसे गाय, भैंस और बकरी, इन सारे जानवरों से जो दूध प्राप्त करते हैं वो तरीका बड़ा क्रूएल्टी है, हिंसक तरीके से उत्पादन करते हैं। तो वो हिंसक तरीके से जो उत्पादन किया हुआ दूध है वो प्रयोग ना करें, यही वीगनिज्म है। वीगन का मतलब ये नहीं कि आप दूध ना पीवे, आप पियो दूध। आप सोयाबीन का दूध पी सकते हैं, आप पी सकते हैं पीनट का दूध, मूंगफली का, और बहुत सारे चीज़ों का दूध आप ले सकते हैं। जैसे जई हैं, जई के दूध भी ले सकते हैं,
जहीं के दूध लियोगे पावरफुल भी है, ठंडक भी है और बहुत बढ़िया है। तो महानुभाव कि इस तरीके के जैसे दूध हो गया, दही है, उसमें भी फैट है, और मक्खन छाछ है, उसमें भी उसके अंदर मक्खन वाला छाछ है। और उसके बाद आप घी है, घी भी नुकसान करता है। डॉक्टर अगर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए तो फैट वाला दूध मना करता है, फैट वाला दही, और उसके अलावा मक्खन, घी, तेल मना करता है। तेल भी हम गलत सोर्स से बना हुआ तेल भी लेंगे, वो भी नुकसान करता है। तो उसके अलावा और डॉक्टर कहता है कि चीनी मत खाओ, ये सफ़ेद चीज़ जो है दूध के साथ जो है, चीनी भी अगर हम खाते हैं वो गलत सोर्स से आता है। उसके अंदर भी कहते हैं कि हड्डी वड्डी डालते हैं, वैसे तो केमिकल्स पड़ते हैं, कोई भी केमिकल नुकसान करता है। और गुड़ जो है उससे थोड़ा बेटर है, पर वो भी अगर शुगर वाला खाता है तो नुकसान करता है। तो महानुभाव ये जो हम शुद्ध भोजन की बात कर रहे हैं कि ये जैसे आम खाओ, स्वयं जियो, गुटली बो, औरों को जीने दो। शाकाहार में जो है सह अस्तित्व का एक सिस्टम है। लोग कहते हैं उसमें भी जीव है, जीव है, हम मना नहीं करते हैं, परंतु उसमें ऐसे जो वनस्पति काय हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दो तरीके के हैं। जो अप्रतिष्ठित जो है उसको साधारण और प्रत्येक हम कहते हैं। प्रत्येक वनस्पति खाने के बाद वो दोबारा उगने का उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे मैंने आम बताया, पपीता खाएंगे उसके बीज बोएंगे, जो चीज़ हम खाने के बाद दोबारा उसकी संतति चलती है। महावीर भगवान कहते हैं स्वयं खाओ और उसको भी जीने दो, तुम भी जियो। आम का आम, गुटलियों का दाम। तो ये जो सिस्टम है ये जैनिज्म में कि सह अस्तित्व का, जियो और जीने दो। स्वयं सांस लो, ऑक्सीजन लो, स्वयं जियो और सांस छोड़ो कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधों को जीने दो। स्वयं भी जी रहे, औरों को भी जीने दे रहे। तो ये विश्व के हर एक जीवों के जीने का अधिकार है। और उन जानवरों के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, कि जीव जंतुओं के साथ कोई अत्याचार ना हो, इसी के लिए ये भोजन पद्धति को निरामिष और शुद्ध भोजन करने का ये जो वीगन का सिस्टम है ये बहुत बढ़िया है। और इसमें क्रूरता से प्राप्त दूध जो है उसका भी प्रयोग कम करो, धीरे धीरे करके आप छोड़ सकते हैं। तो महानुभाव उसके अल्टरनेटिव भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसी तरीके से हमको कि ये जो विश्व में जो असंतुलन है उसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए हम आप सब मिल करके हम इस तरह से ध्यान देंगे। पहले कम करो, धीरे धीरे करके उस क्रूरता से बचने के लिए, स्वयं को उस भावनाओं से बचाने के लिए हमको इन सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए और जो क्रूएलिटी से जो प्राप्त होते हैं, इन चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। और एकदम छोड़ सकते तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। नहीं तो एक एक दिन करके, एक दिन का कर दिया, आज नहीं खाएंगे, हफ्ते में एक दिन का, फिर बढ़ा के 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का, 6 दिन का, जिस दिन 7 दिन का हो जाएगा तो आपका और सबका कल्याण होगा। तो यही मैं कहता हूँ, हम लोग भी प्रयास करें, सब लोग प्रयास करें, कम करें, अल्टरनेटिव दूध पे, अल्टरनेटिव चीज़ों पे हमको ज़्यादा निर्भर होना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ कि वीगनिज़्म जो है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है। विश्व के सबके लोगों के लिए, आपस में भोजन के लिए, सबको भोजन मिले, सबका जीवन सही चले, सारे जीवों के प्रति दया भाव हो, करुणा वात्सल्य भाव हो, प्रेम भाव हो, मैत्री भाव हो। तो यही मैं विश्व शांति के मंगल कामना करता हूँ। जय बोले शिव सागर महाराज की जय।
क्या हम वर्तमान पशु का दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं कर सकते हैं तो किस प्रकार के पालन किए गए पशु का दूध कब और कितनी मात्रा में हम इसका सेवन कर सकते हैं? अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो कैसी शारीरिक और आध्यात्मिक दुर्गति होगी? इस विषय पर लब्धि सागर महाराज साहेब ने खुद पर प्रयोग किया है। उन्होंने 2012 से दूध छोड़ा है और बहुत ही गहन अभ्यास किया है। शास्त्रों का भी उन्होंने उल्लेख किया है। तो सुनते हैं लब्धि सागर महाराज साहब जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। देवचंद्र जी महाराज परमात्मा महावीर देव के शासन की साधना का एक अभूतपूर्व मार्ग दिखाते हैं कि हे परमात्मा, मेरी एक विनंती है, मुझे यह शक्ति दीजिए कि मैंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी साधना का आरंभ किया है और जिस तरह से मैंने किसी श्लोक का अर्थघटन किया है, शायद उससे भिन्न प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हमें नया अर्थ और नई साधना का दिशा दर्शन करते हैं तो परमात्मा मैं उसका स्वीकार कर सकूं। परमात्मा महावीर देव ने अहिंसा और त्यागवाद अनेकांत की विश्व को महान भेंट अर्पण की। त्यागवाद दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी स्वीकारना चाहिए। आज एक ऐसे विषय के ऊपर मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूं। हमें समझना चाहिए कि दूध, दही, घी इत्यादि जो विगई है उसके बारे में परमात्मा महावीर देव ने क्या बताया, क्या फरमाया, आज के परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली दो चार बातें समझ लीजिए कि इस विश्व के अंदर जो सस्तन प्राणी होता है वो ही दूध देता है। नंबर 2, सस्तन प्राणी को दूध सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही आता है। नंबर 3, मानव के सिवाय हर बच्चा जब तक छोटा होता है तब तक ही दूध पीता है, बड़ा होकर के दूध नहीं पीता। नंबर 4, मानव के सिवा हर बच्चा अपनी माँ का ही दूध पीता है, दूसरों की माँ का दूध नहीं पीता। तो क्या मानव ने दूध पीने का जो प्रारंभ किया वो कब से है? क्या सही है या गलत है? भगवान महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ, उनकी बात करे या गौतम गंधर्व भगवंत की बात करे या पूर्वाचार्यों की बात करे, राम और कृष्ण की बात करे, क्या उन सभी ने दूध, दही, घी अपने आहार में लिया था? तो यह कहना होगा कि हाँ, विश्व के अन्य प्राणियों से ऊपर उठ करके विकासशील ऐसे मानव ने अपनी आराधना और साधना का संबल बनाने के लिए दूध, दही और घी का स्वीकार किया है। लेकिन उन्होंने किस रूप में किया और क्या स्वीकार करने के लिए कैसे स्वीकार करना है उसके बारे में जो मैं बताया शायद हम भूल चुके हैं। परमात्मा महावीर देव ने कहा, पचखान भाष्य में एक गाथा आती है, स्पष्ट रूप से बयां किया गया है कि जो दूध, दही और घी है, साथ में तेल और तली हुई चीज और गुड़, इन 6 चीजों को हमारे यहां विगई कहा गया है। विगई का मतलब है कि उसके 2 अर्थ किए हैं, विगई विगई प्रियो, विगई विगई जो बलाने, विगई जो है वो हमारे भीतर में विकार करती है और विगई जो है वो हमें विगति यानी दुर्गति में ले जाती है। हम जब
विगई का पोषण करते हैं तब वह विगई हमारे भीतर में विकार का निर्माण करती है, यानी हमारी जो साधकता है उसे दूषित करती है, उसमें बाधा पहुंचाती है। इसलिए अगर हमें कोई तप करना है, कोई जप करना है, कोई साधना करना है, उसका जब उत्तर पाना हो या तो उत्तर पाना हो तो उसके पहले या बाद में, और वो भी औषध के रूप में, हमें दूध रही घी का स्वीकार करना था। लेकिन समय बदला और हम लोगों ने अपनी लालसा और स्वाद के कारण हमने विपुल मात्रा में दूध दही और घी लेना शुरू कर दिया। उसके परिणाम श्वेत कुरियन ने एक डेयरी उद्योग की क्रांति की। डेयरी उद्योग की क्रांति होते ही आज तक जो पशु हमारे जीवन के अंदर एक पारिवारिक प्राणी थे, पारिवारिक लागनी की तरह जुड़े हुए प्राणी थे, और वह प्राणियों को हमने सिर्फ एक मशीन बना के छोड़ दिया। हर डेयरी उद्योग की 3 पांख होती है। पशु का संवर्धन करना नंबर 1, नंबर 2 पशुओं का डेयरी उद्योग, उनसे दूध प्राप्त करना, नंबर 3 कि उन पशुओं को फिर कत्ल खाने बेच देना। तो ये 3 प्रकार की पाक हर एक डेयरी में उपलब्ध होती है। ये डेयरी वाले पशुओं का संवर्धन करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनके पेट के अंदर इतना बड़ा सुराख लगाते हैं और प्लास्टिक की पाइप लगा करके कायम के लिए सुराख रखते हैं। कितना खाया, कितना हजम हुआ, कौन सी दवा डालना, किस तरह से वो पशु ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा दूध देवे, ऐसी तैयारी करना, और फिर उसका दूध लेने का प्रारंभ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सस्ता हो और प्रोडक्शन महंगा हो, यही हर मशीन के साथ किया जाता है, और वही आज पशुओं के साथ होता है। खिलाते हैं बहुत निम्न कक्षा का आहार, व्यवहार उनसे बहुत निम्न कक्षा का किया जाता है, और उन पशुओं के साथ इतना अमानवीय दुराचार, इतना अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता है, उसको जीव ही नहीं माना जाता। उसको कृत्रिम गर्भाधान करते, नीम हकीम जो आते हैं, इतना बड़ा बड़ा हाथ, इतनी बड़ी बड़ी पाइप, जिस तरह से उनको वेदना देते, कृत्रिम गर्भाधान, हर साल बच्चा आना ही चाहिए। अरे बच्चा सहज रूप से आता था, और बच्चा अपना पूरा पेट भर के दूध लेता था, उसके बाद बचता था वो दूध हमारे यहां लिया जाता था। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई, इतना दूध हम पीने लगे, इतनी दूध की मांग बढ़ गई कि अब ये हालत है कि जिन बच्चों के लिए दूध आता है, वो बच्चा कृत्रिम गर्भाधान से आता है। आने के बाद जैसे ही मां का व्यवस्थित दूध शुरू हो गया कि सीधा वह बच्चा कत्ल खाने जाता है। श्वेत कुरियन की रिपोर्ट के अनुसार मात्र बंबई में से प्रति वर्ष 80,000 बच्चे कत्ल खाने जाते, जिसका हक था, जिसका नाम लिखा था उस दूध के ऊपर, वो कत्ल खाने, और हम वो गिलास भर के दूध पीते हैं। क्या दूध पीते हैं या खून पीते हैं? 20 साल जीने वाला प्राणी 6 या 7 साल के अंदर दूध देना बंद कर देता है, अधमर्रा हो जाता है। इतने नृशंस और घातकी तरीके से उसे गाड़ी पर फेंक दिया जाता है और कत्ल खाने में उसको काट दिया जाता है। 20 साल के पशु को क्या हम हमारे लिए 7 साल में मार देंगे? 7 साल के अंदर एक गाय के 7-8 बच्चे को क्या हम मार देंगे? और क्या जरूरत है दूध पीने की? कोई बड़ी तपस्या करे, बड़ी साधना करे, और ऐसा कोई विशेष कार्य प्रसंग हो, शरीर में कोई हानि पहुंचती हो,
तो जरूर दूध पिए, लेकिन औसत के मुताबिक पिए। लेकिन इस तरह से सिर्फ हमारी जीभ की लालसा की वजह से हम दूध पिए और लाखों लाखों करोड़ों पशु हर साल अगर हमारी वजह से कत्ल खाने में जाते हैं, भले ही दूध मांसाहार नहीं है, लेकिन दो बातें समझ लीजिएगा। एक 20 साल का पशु 6 साल में मर जाता है तो उसका पाप हमें लगता है तो लहू के बराबर बन जाता है। और नंबर 2, मशीन से दूध निकालते, पता है आपको, हाथों से दूध निकालने में तकलीफ पड़ती है। मशीन से दूध निकालते हैं और मशीन का आखिर झटका जब लगता है तब उनके आंचल में से खून निकल आता है और रोज रोज उसी खून वाले आंचल पे फिर मशीन, फिर झटका, फिर मशीन, फिर झटका, वो आंचल में से लहू और परु निकलता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि विदेश में तो एक धाराधोरण है कि 1 लीटर दूध के अंदर 2 बूंद खून और 8 बूंद पस परु उसकी छूटे। भारत में तो कोई धाराधोरण भी नहीं है। क्या दूध के अंदर वो खून नहीं आता? क्या दूध के अंदर परु नहीं आता? क्या वो मांस नहीं है? क्या वो लोही नहीं है? क्या वो मांसाहार का और लोही पीने का पाप नहीं है उसके अंदर? हमें समझना चाहिए। इतने घातकी अत्याचार उनके होते हैं। दूध उनको आना चाहिए, उसके लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जबकि प्रतिबंधित है। लेकिन भारत देश का कोई तबेला और कोई डेयरी उद्योग ऐसा नहीं है जो एवरीडे पशुओं को ऑक्सीटोसिन न देता हो और हर वक्त का ऑक्सीटोसिन उन्हें प्रसव की जैसी पीड़ा देता है। पशुओं को खिलाया जाता है प्रोटीन के रूप में आहार, वो भी कत्ल खाने का कटा हुआ पशुओं के मांस का कचरा, और उन कचरे के अंदर ईयड़ कीड़े सड़ते और उन कचरे को 200 डिग्री तक उकालते और उसमें से जो माल बनता है उसे प्रोटीन के नाम पे पशुओं को खिलाया जाता है, जो गाय भैंस मांसाहार करके दूध देते हैं। क्या वो दूध हमारे लिए वाजिब है? हमें अच्छा खाना खिलाना चाहिए और हमें हमारे घर में हमारी माता होती है, वैसे ही हमें गाय माता समझ के पालन करना चाहिए। उसके 4 आंचल में से 2 आंचल बच्चों के लिए संपूर्ण रूप से छोड़ देना चाहिए। मिनिमम इतना कानून है। हमारे यहाँ 3 आंचल बच्चों के लिए, 1 आंचल हमारे लिए होता था। कोई गाय बहुत दूध देती थी तो उसको 1 आंचल 3 आंचल विभाग होता था ऐसे। लेकिन बच्चों को पूरा दूध पीना ही चाहिए और पूरा दूध बच्चों को मिलना ही चाहिए। गाय का दूध अमृत है, मैं पूर्ण रूप से इस बात में सहमत हूं। गाय भैंस पशु ये हमारे मानव के साथ ही रहने वाले पशु है और साथ में रखना ही चाहिए और उनसे परिवार की तरह नाता बनाना चाहिए और इस तरह से अमृत की तरह दूध लेना ही चाहिए। लेकिन ये अमृत नहीं, पर आज का दूध वो तो खून है। इसलिए हमें जितना हो सके जल्द से जल्द ये दूध हमें बंद कर देना चाहिए। आज के दूध की मांग इतनी बढ़ चुकी है कि भारत देश दुनिया को ये दूध पहुंचाने में सक्षम नहीं, इसलिए इसमें मिलावट की जाती है जिसके अंदर यू कांट बिलीव कांट जज क्या क्या मिलाया जाता है। सिर में डालने का शैम्पू, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया, क्या क्या भद्दी चीजें मिलाई जाती है। 1 बूंद दूध न होता है, उसके बाद भी एक एक घर के अंदर 100 लीटर दूध बनता है। चक्का जाम उसमें से दही भी बनता है जबकि दूध बूंद नहीं है। और बाजार की सारी मिठाइयां अक्सर ऐसे ही बनावटी दूध से बनी हुई थी। क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा? आपको अटैक आएगा, आपको डायबिटीज बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर होगा, दुनिया भर की बीमारी होगी। सारी बीमारियों की जड़ है। हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। जिस तरह मना करते पिज्जा ना खाओ, बर्गर ना खाओ, बाजार का ना खाओ, वैसे दूध दही और घी भी इतना ही हानिकारक है, वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। जहां गाय माता की तरह पालन हो, उसका दूध वक्त पर और औसत के मुताबिक लिया जाए। बाकी हमारी
सकल जनता से करबद्ध विनंती है कि हजारों और लाखों पशु जो बेरहमी से मारे जाते हैं, काट दिए जाते हैं, ये सारे पशु आपको हाथ जोड़ के विनंती करते हैं कि प्लीज, हम भगवान महावीर स्वामी भगवान आदिनाथ के चरणों के लांछन है। हमने आपके पुरखों की सेवा की है, हमने आपके पुरखों को पाला है, हमारे कंधों पे खेती करके हमने अनाज उगा के आपके पेटों तक पहुंचाया, और आज तुम हमें काट डालने के लिए तैयार हो गए। कुछ तो रहम करो, कुछ तो समझो, और पशुओं पर होने वाले अत्याचार को बंद करने का एक उपाय है कि हमें वर्तमान काल में दूध, दही और घी नहीं लेना चाहिए। पूर्व काल के अंदर दूध, दही और घी लेने से पशु बचते थे, आज के काल के अंदर दूध, दही और घी लेने से पशु मरते हैं। इतनी बात को बड़े प्यार से, लगाव से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आपके दिल में कोई भी तर्क हो, कोई भी विचार हो, जरूर उन तक पहुंचाए। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती है तो आप जिंदगी भर के लिए दूध, दही का त्याग कर दे। आप दूध, दही का त्याग करेंगे तो आपके जीवन के अंदर किसी भी खाने के अंदर जो द्विदल होने का पाप लगता है वह आपको नहीं लगेगा। आप दूध और दही साथ में खाओगे तो विरुद्ध आहार होगा, दूध और फ्रूट साथ में खाओगे तो विरुद्ध आहार होगा, लेकिन ये खाना बंद कर देंगे और अल्टरनेटिव जो है दूध, दही और घी का, बादाम का दूध, काजू का दूध, कोपरे का, नारियल का दूध, इस तरह से उसका दही बनता है। और ऑलिव ऑयल जो घी काम में आता है, इससे आपको वो विरुद्ध आहार भी नहीं होगा, उसमें आपको द्विदल का पाप भी नहीं लगेगा, पशु भी नहीं कटेगा। और इसलिए मुझे आज तक में ऐसा समझ में आया है, बड़े दिल से, चाव से आपको कह रहा हूं, आप दूध, दही का कायम के लिए त्याग कीजिए। आखिरी बात, अगर कायम के लिए त्याग नहीं कर सकते हो तो सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, 1 महीने के लिए त्याग कीजिए और एहसास कीजिए आपकी तबीयत कितनी अच्छी होती है। मैंने महसूस किया है दूध, दही और घी त्याग करने से मेरी आध्यात्मिकता, ध्यान साधना और मेरी हेल्थ regarding cow buffalo milk as being amrit or being cannibalistic. I consider myself Jain, so ahimsa is my first choice. I am totally confused what to do, to drink or not to drink milk, because I like milk and I see to it that my family also consumes it daily. 2 बातें हैं। गाय के दूध को अमृत कहा जाता है, और इस दूध की वजह से आज बहुत सारी गायों को कत्ल खाने में जाना पड़ रहा है। अब यहाँ प्रश्न है कि मैं एक जैन हूँ, अहिंसा को फॉलो करती हूँ, तो मुझे मिल्क पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। पर मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं मिल्क पीना चाहती हूँ और मेरी फैमिली भी पीती है, तो मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। तो इसमें पुराने लोग कहते थे कि जब भी मन के अंदर सवाल आए कि खाइबे कि नहीं खाइबे, तो कहते नहीं खाइबे चोखो। अगर ये क्वेश्चन पैदा हो कि मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, तो नहीं खाना बेस्ट है, ठीक है। और फिर मन कहता पसंद है, तो अपने आप को बोलना जो पसंद है वही तो छोड़ना है, जो ना पसंद है वो तो छूटा हुआ ही है। जो पसंद है उसी को तो छोड़ना है, छोड़ दो। अब रही बात क्यों छोड़ो, क्योंकि डिलीमा है, मन में द्वंद है कि गाय, बफेलो, इन सब के दूध को आज के ज़माने में पीना सही है या नहीं। सही नहीं है। एक तो सही नहीं है क्योंकि हम सबको पता है कि गायों की संख्या घटती जा रही है और दूध पीने वाले इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में उनके ऊपर क्रूएल्टी हो रही है, 100% क्रूएल्टी हो रही है। और गाय का दूध उसके बछड़े के लिए, बछड़े को पीने को मिलता नहीं और ज़बरदस्ती इंसान उसमें से छीनता है अपने सुख के लिए। तीसरी बात,
आर्टिफिशियल तरीकों से दूध निकाला जा रहा, जो कि टोटली रॉन्ग है। क्योंकि गाय भी तो एक सचेतन प्राणी है, इंसान की तरह उसमें भी जीवात्मा है और उसके पास भी इमोशंस है। एक तरफ तो कहते हैं गाय हमारी माता है, और जरा सोचो कोई माता का दूध जबरदस्ती छीने, वो मशीनें लगा करके, कौन माता अलाउड करेगी? तो क्या हो रहा है आजकल बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स के अंदर? वी ऑल नो सच्चाई क्या है। हमें से किसी को एक्चुअल में कहा जाए तो दूध पीना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध निकलता कैसे। फिर नेक्स्ट बात कि दूध हमारे घरों में जो आ रहा है, कई बार तो वो नकली दूध ही आ रहा है, भी सबको पता है। दूध के पाउडर को किस तरीके से वो सेव करके रखते हैं, फिर उसी पाउडर का मिल्क बना बना करके बेचते हैं, और वो असली दूध होता है तो बेचारा कुछ घंटों में ख़राब हो जाता। और नकली दूध कई कई दिनों तक आपकी थैलियों में पैक रह करके फ्रीजर में पड़ा रहता है, कुछ ख़राब नहीं होता। उस असली दूध में क्या है, नकली दूध में क्या है? वो फैट बढ़ाएगा, उसके अंदर तत्व तो नहीं है दूध के। अच्छा, हम दूध पीते क्यों हैं? पता है क्यों? हाँ, प्रोटीन कैल्शियम के लिए। हाँ, या और भी कोई कारण है? और कोई कारण नहीं है। हम दूध इसलिए नहीं पीते प्रोटीन और कैल्शियम के लिए। अगर आपके मम्मा कुछ और ऐसी चीज़ें खिलाए ना जिसमें प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, लेकिन उसके अंदर टेस्ट ना हो, खाओगे क्या? नहीं खाओगे। हम दूध पीते हैं केवल हमारी हैबिट्स की वजह से। बचपन से माँ ने इतनी आदत डलवा दी दूध की, बेटा राजा बेटा दूध तो पीना पड़ेगा। वो हम सो जाते ना तो नींद में से उजागा करके कहती आज का दूध तो पिया ही नहीं, दूध पी फिर सो। हाँ नहीं, आज भी आपकी वाइफ ऐसे ही करती होगी आपके साथ में। और वो इतना जबरदस्ती दूध पिलाया गया, कब आदत ही पड़ गई। दूध ना पियो तो ऐसा लगता है ब्रेकफास्ट में कुछ तो कमी रह गई। शाम को रात को दूध ना पियो तो ऐसा लगता है सोएंगे कैसे, दूध तो पिया ही नहीं अभी तक। हाँ, केवल ड्यू टू हैबिट्स। देखो, दुनिया में कोई जानवर ऐसा नहीं है जो बचपन से बड़ा होने के बाद कभी दूध पीता हो। जब पैदा होता है तो कुछ टाइम के लिए दूध की जरूरत होती है, और प्रकृति में हमारे लिए दूध की जरूरत जब तक थी तब तक दूध हमें मिला। वो नेचुरल दूध था, माँ का दूध। जब हमारी बॉडी को जरूरत नहीं थी, नहीं मिला। हड्डियों को स्टार्टिंग में बनने के लिए जिस चीज़ की जरूरत थी वो मिल रहा था। अब बाकी का जितना भी दूध पिया जा रहा है सब एक्स्ट्रा है, सरप्लस है। और नहीं प्रोटीन, विटामिन, अरे कितने आज भी प्राणी हैं, प्राणी छोड़ो इंसान है। और पहले ज़माने में देखो ना, लोग दूध के लिए तरसते थे। बड़ी मुश्किल से किसी किसी के घरों में गाय जहाँ होती वहाँ दूध मिलता था। किसान लोग, जाट लोग, दूध होता ही नहीं तो भी बड़े आराम से जीते थे। वो क्या खाते, वो एक बाजरी की, वो मक्का की कोई एक रोटी खाई, साथ में एक आध कोई साग लिया, कोई कच्चा, कोई प्याज लिया, लहसुन लिया, कभी छाछ पी ली, बस। उनको कोई प्रोटीन की कमी, कभी उनको आपको लगा D3, B12 कोई कमी आई? हाँ, उनको कभी ना, हमने कभी बचपन में नाम सुना था क्या कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब कुछ आज की दुनिया में क्यों है? क्योंकि खाना खराब, दिमाग खराब, इसीलिए सारी बीमारियाँ हैं। खाना खराब है और दिमाग खराब है, आर्टिफिशियल खाना है। सच्चाई में जाओ तो शायद ही पी पाओगे दूध। इसीलिए आई थिंक सो कि जैन लोगों को ही नहीं, हर समझदार आदमी को दूध नहीं पीना चाहिए। और आप सबको पता है वेस्टर्न में कितना बड़ा आज वेगनिज़्म का कल्चर चल रहा है। लोग वेगन बन रहे हैं, मतलब नॉनवेज तो छोड़ ही रहे हैं, वेगन्स बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई भी मिल्क प्रोडक्ट काम में नहीं लेना। और आप हैरान होगे, मैं जैन समाज के सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई जाहिर करने जा रही हूँ कि जैन सूत्रों में दूध, दही, घी, तेल, मीठा, इनको विगई कहा गया है। और विगई को खाने का निषेध तो लिखा है शास्त्रों में, लेकिन जमीकंद खाने का निषेध नहीं लिखा हुआ है। खाओ नहीं खाओ अपना विवेक, जमीकंद नहीं खाओ ऐसा कहीं निषेध सूत्र नहीं मिलता है, लेकिन विगई का सेवन ना करो इसका निषेध सूत्र मिलता है।
उत्तराधीन सूत्र के 16वें अध्याय में मिलता है, 17वें अध्याय में मिलता है, स्थानांक सूत्र में मिलता है। स्थानांक सूत्र में वर्णन है कि विगय 9 प्रकार के, विगय 4 प्रकार के, चौथे ठाणे में 4 प्रकार के बताए, 9वें ठाणे में 9 प्रकार के बताए। उत्तराधीन सूत्र के 16वें अध्याय में बताया कि पड़ियम भक्त पाणम, तो ये जो प्रणीत भक्तपान है यह अंदर जाकर के काम वासना की वृद्धि करता है। इसीलिए किसी समझदार को, किसी साधक को इन ऐसे भोजन को दूर करना चाहिए। साधु के लिए कहा, जो सुबह से शाम तक दूध दही का खाना खाता है वो साधु साधु नहीं रहेगा, वो पापी साधु बन जाएगा। इसलिए कहा वो ना खाए, स्पष्ट लिखा है। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि तुम ये जमीकन मत खाओ। पर हमारा पूरा जैन समाज, चूंकि दूध तो उसकी बचपन की आदतों में पड़ा है, इसलिए दूध नहीं छोड़ता। और बताओ, दूध पंचेंद्रिय का प्रोडक्ट है और जमीकन एक इंद्रिय। पहले पंचेंद्रिय की हिंसा से तो बचो, फिर एक इंद्रिय की हिंसा से भी बचना। लेकिन हम एक इंद्रिय की हिंसा का बहाना बनाते हैं और पंचेंद्रिय की हिंसा टेस्ट की वजह से कभी छोड़ते नहीं है। सॉरी टू से, बट ऐसा ही है। अगर अहिंसा की पालना करनी है तो पहले स्व से शुरू करो, खुद को राग द्वेष से रहित करो, खुद को तनाव में मत रखो। क्योंकि आप अपने आप की हिंसा करते हो तो पूरे लोक की हिंसा करते हो, पूरे ब्रह्मांड की। ऐसा भगवान महावीर स्वामी का वचन है आचारांक सूत्र में। ये जो एक का हिंसक है वो सबका है। पर हम क्या करते हैं? खुद टेंशन में, खुद स्ट्रेस में, खुद डिप्रेशन में, खुद गुस्से में, ये सब क्या कर रहे हैं? हम अहिंसक नहीं हैं, हम हिंसक हैं। और अपनी हिंसा को पहचानना जरूरी है हिंसा से मुक्त होने के लिए। फिर देखो, हम और अपने साथी साथियों की हिंसा कैसे करते हैं? पारिवारिक लोगों की। अब जिनके साथ रहते हो उनसे नाराज होकर रहते हो, उनकी हिंसा नहीं हो रही। सामने वाले ने आपके लिए खाना बनाया, बड़े प्यार से बनाया, पर मेरे टेस्ट का नहीं है, मैं नहीं खा सकता, खाना छोड़ के चले गए, उसका दिल दुखा, हिंसा नहीं हुई? हुई ना? ध्यान रखते हैं हम अपने मूड के अकॉर्डिंग दूसरे वालों के साथ, सबके साथ बिहेव करते हैं। हमारा मूड नहीं है तो थाली उठा के, हमारा मूड नहीं है तो सामने वाला बतलाता रहे, जवाब भी नहीं दूंगा मैं। व्हाट इज दिस? जैन अहिंसा परमो धर्म की जय हो नारा लगाना बहुत आसान है। अहिंसक होना, खुद से सवाल करो, हूं क्या? खैर, पंचेंद्रिय से चौरेंद्रिय, तेंद्रिय, बेंद्रिय, एकेंद्रिय तक की दया पालो। लेकिन पहले खुद को तो देखो। और फिर जो भोजन आवश्यक नहीं है उसको क्यों करना? जिसके बिना काम चल सकता है, दूध के बिना काम नहीं चल सकता क्या? चल सकता है। तो क्यों खाना, क्यों पीना? तो पूरे वेगन बनो, बहुत बढ़िया। ना भी बनो तो कम से कम इतना तो विवेक रखो कि आवश्यक होगा तो उतनी ही मात्रा में ग्रहण करूंगा जितना बहुत आवश्यक होगा। अन्यथा मैं उन चीज़ों से अपने आप को मर्यादित करता हूँ, विरमित करता हूँ। साधु विरमण करे, गृहस्थ मर्यादा करे। जैन धर्म में बताया गया गृहस्थ का धर्म मर्यादा में है, क्योंकि वो हर चीज पूरी तो नहीं छोड़ सकता, लिमिट तो कर सकता है, तो लिमिट्स करे। साधु पूरी छोड़ सकता है तो साधु कैसे रहे? उसमें रमण ना करे, विरमण रहे। फिर उसको जब जहां जैसा मिलेगा वो उसको ग्रहण करेगा, तो भी उसमें मन नहीं लगाएगा, तो भी अनावश्यक ग्रहण नहीं करेगा, तो भी समिति गुप्ती में रहेगा। साधु का धर्म विरमण का, गृहस्थ का धर्म मर्यादा का। तो प्रश्न है कि मुझे दूध बहुत पसंद है, लेकिन डिलेमा है, कंफ्यूज हूँ, पीऊँ कि ना पीऊँ? ना पी करके काम रह सकता है तो बेहतर है मत पियो। फिर भी लगता है कि पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पसंद है, ज़रूरत लगती है, तो मर्यादा कर लो।
और उस मर्यादा को बांध करके उसके अकॉर्डिंग एक जागृत जिंदगी जियो। फिर तीसरी बात, गाड़ियों पे गाड़ियां आदमी खरीद रहा है, क्या वो जानवरों के लिए कुछ नहीं करेगा? जो भी नया मॉडल आता है कार का, मन तो करता होगा ना कि ये गाड़ी अपने पास आ जाए। लेकिन जब भी पैसा ज़्यादा आया, कभी सोचते हो कि मैं इन मूक प्राणियों के लिए क्या करता हूँ? पंचेंद्रिय जानवरों के लिए मेरी ओर से क्या कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी में, इस एनवायरनमेंट में? अगर दूध ही चाहिए तो दुधारू जानवर को पालो। पुराने जैन श्रावक पालते थे, उनके पास गाय भैंसें होती थी और वे बराबर उसकी सेवा रक्षा करते थे। और जब आप बराबर उसका ख्याल रख रहे हो, फिर आपने उसका थोड़ा दूध पी लिया, वो भी खुश होगी, खुश होकर देगी, क्योंकि वो तुम्हारे साथ उसका संबंध बना है। अभी जो हम दूध ले रहे हैं ना, उसमें कहीं भी प्रेम नहीं, कहीं भी सेवा नहीं। जो कुछ है वो केवल सुविधा भोग है। तो सुविधा भोग हमारी संवेदनशीलता को ख़त्म करता है, कर ही रहा है। सेंसिटिविटी जाती जा रही है। अब दूध देने वाली गाय छोड़ो, हमारी माँ जिसने हमें दूध पिलाया, हम उसके प्रति भी सेंसिटिविटी खोते जा रहे हैं। नहीं, जिसने हमें दूध पिला के बड़ा किया, वह उसके प्रति भी हमारे मन के अंदर करुणा, प्रेम, सेवा, समर्पण, एक आत्मीयता, वो भी घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि आदमी अपना पूरा खाना पानी खुद उत्पन्न करके नहीं खा रहा, खुद नज़दीक रह के समझ के नहीं खा रहा, वो सब डब्बा पैक संस्कृति में जी रहा है, फास्ट फूड में जी रहा है, सब आर्टिफिशियल में जी रहा है। तो धीरे धीरे उसके अंदर की चेतनाएं कमज़ोर होती जा रही है। इसलिए हमारी आत्माएं सिकुड़ती जा रही है, केवल दिमाग डेवलप हो रहा है, दिल, भावनाएं वो सब स्वार्थी होती जा रही है, क्योंकि हमारा पूरा खान पान भी वैसा ही हो रहा है। इसीलिए कोशिश करो, विगन बनो, बहुत अच्छा। पूरे ना बन सकते हो, मर्यादा करो, मर्यादा करो, ऐसा तो कर सकते हैं ना। और जो चीज़ बहुत पसंद है उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्यों पसंद है, तो पता लगेगा। बचपन से टेस्ट बर्ड्स को आदत पड़ गई है इस चीज़ों की, इसीलिए, और कोई कारण नहीं है। तो क्या मैं उस आदत को ब्रेक नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ? खुद से बात करो, धीरे धीरे आपकी वो आदतें भी आपसे छूटती चली जाएगी। जय हो। वेगन विजन मिशन से जो आज 400 लोगों का क्रूज के द्वारा यात्रा हो रही है, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि हमारी महान भारतीय संस्कृति जिसने शाकाहार का दर्शन दिया और उसी का अगला कदम विगन के रूप में, और इस अमेरिका की धरती पर आज 400 लोग जो हैं, जिसके अंदर केवल भारतीय समुदाय के लोग ही नहीं, विभिन्न अमेरिका और यूरोप के देशों के मूल गोरे भी इस मिशन से जुड़े हैं। सचमुच में भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व जो दर्शन दिया, उन्होंने जो एक संदेश दिया, आज वही संदेश अमेरिका की धरती से पूरी दुनिया में शाकाहार के लिए, वीगन के लिए प्रसारित हो रहा है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण जैन समाज की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से भाई एस.के. जैन जी को इस बात के लिए बधाई और साधुवाद देता हूं, अमेरिका की धरती पर इस महान आयोजन के लिए। ओम अरहम।
प्रयोग कर रहे हैं, तो एक तरफ से देखा जाए तो दूध ऐसे आप लोग कहते हैं कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है, परंतु ये कहाँ तक उचित है कि जिस समय गाय बछड़े को जन्म देती है और उस बछड़े को गाय से अलग कर देते हैं और उन इंजेक्शनों के माध्यम से, अनेकों प्रकार के टीका के माध्यम से उस गाय का दूध निकालते हैं, तो ये दूध पीने योग्य नहीं माना जाता है। एक माँ से बच्चे को अलग कर देना ये कहाँ तक का उचित है? ये भी एक हिंसा में ही आता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बछड़े को अलग कर देते हैं, माँ कितनी तड़पती है अपने बच्चे के लिए, और बच्चे को उस धूप में खड़ा कर देते हैं, अनेकों प्रकार से उसको तकलीफ देते हैं, तो माँ को इस प्रकार दुख देखते हुए उसको भी दुख होता है। और उस गाय को फिर दूध के लिए व्यक्ति अनेकों प्रकार का टीका लगाकर उस गाय को अंदर से कितनी वेदना होती है, और जब थन से दूध निकलता है तो उस दूध में थोड़ा सा खून का भी अंश आता है और पश का भी अंश आता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये दूध भी एक मांसाहार में ही आ जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि विशेष व्यक्तियों को खाने की पीने की बहुत चीजें हैं, इस शरीर को चलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो ऐसी चीजों को उपयोग न करें जिससे किसी व्यक्ति, किसी जीव को तकलीफ हो। दूध, हम कहते हैं कि दूध शाकाहारी है, परंतु मैंने अपनी आंखों से इस प्रकार देखा है, तो मेरे मंतव्य से मैं कहती हूँ कि दूध मांसाहार में आ सकता है। हमने भी ऐसे अनेकों प्रकार का ये विवरण देखा और अपने आंखों से वीडियो देखा, तो हमारे मन में भी आया कि दूध शाकाहार नहीं है, मांसाहार है, इसलिए हमने भी ये दूध का त्याग किया है। हमारे गुरु जी ने भी, आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव ने भी ये रस का त्याग किया। जैन धर्म में रस बोलते हैं दूध को, तो उन्होंने भी ये दूध का आजीवन त्याग किया है, क्योंकि पहले के जो गाय भैंस रखते थे वो बछड़े को पूरी तरह से माँ का दूध पिलाते थे, परंतु आज तो जन्म देते ही बछड़े को अलग कर देते हैं और टीका के माध्यम से उस दूध को निकालते हैं और उसको तकलीफ होती है, तो ये दूध शाकाहारी नहीं माना जाता है, मांसाहारी माना जाता है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि अपने को ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर टीका लगा कर 2-3 साल तक दूध निकालते हैं, फिर वो दूध देने योग्य नहीं रहती, बांझ हो जाती है, तो उसको फिर हिंसक जगह पर भेज देते हैं, उसको काटने के लिए भेज देते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? और उसको बछड़े को भी अनेक तरह से उसको दुख देकर वो बेचारा तड़प के मर जाता है। तो हम मानव हैं, तो मानवता में दया भाव होना चाहिए। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप स्वयं इस प्रयोग को देखें। ऐसे अनेकों जगह पर ये दिखाते हैं, वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो आप स्वयं इसमें जाने और जानकर ऐसी चीजों का त्याग करें। दूध शाकाहार नहीं है, मांसाहार है। अभी हमने थोड़े दिन पहले वीडियो में देखा था और कई संस्था के सदस्य लोग इन जो गायों को एक ट्रक में भर के, भैंसों को ट्रक में भर के, पशु पक्षियों को ट्रक में भर के, एक छोटे से ट्रक में कितने पशुओं को भर के ले जाते हैं और एक के एक ऊपर ऐसे डाल के उनको ले जाते हैं। तो कई संस्था वालों ने इन ट्रकों को रोककर इन पशुओं को बचाया था। ऐसी संस्थाएं जगह जगह पर हो जाए, ये सराहनीय संस्था है और इस संस्था को सभी लोगों को साथ देना चाहिए, तन मन धन से साथ दो। हमने स्वयं खुद ने देखा था कि ट्रकों में इतने सारे पशुओं को भर दिया और जहाँ ले गए वहां से उसकी पूंछ को पकड़ के, उसके सींग को पकड़ के निर्दयी होकर उसको ट्रकों से बाहर फेंकते हैं। तो क्या उसकी आत्मा को दुख नहीं होता है? क्या अनेकों अंग कट पड़ जाते हैं और उसको इतना तकलीफ देते हैं? ये गलत है। तो मेरा तो यही कहना है कि जगह जगह पर इस प्रकार की संस्थाएं खुल जाए और सारे सदस्य इस प्रकार के पशुओं और पक्षियों को बचावे, तो आपके जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। ये अहिंसा धर्म बता रहा है।